हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 90 है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग? So baking soda on heating gives carbon dioxide, while washing soda on heating just loses water of crystallization and it will give you sodium carbonate, anhydrous sodium carbonate. क्लियर हो गई बात? इसे थोड़ी देर तक हीट करना है, बहुत ज्यादा हीट करोगे तो वॉशिंग सोडा में से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 91। Salt, a commonly used in bakery product on heating gets converted into another salt B. A salt A used in bakery product on heating converts into another salt B, which itself is used for removal of hardness of water and form a gas C, and a gas C is evolved. The gas C, when passes through lime water, turns it milky. Identify A, B, and C. अब पहले वाला क्वेश्चन ही है। Salt A is sodium hydrogen carbonate. Clear? Yes, sir. Salt B is sodium carbonate. Clear? And gas C is carbon dioxide. अब एग्जाम में याद रखना, जब भी कभी आइडेंटिफाई ए बी सी आता है तो या तो आप इसमें नाम लिखो या फॉर्मूला लिखो, बोथ विल वर्क, बट कोशिश करना कि नाम ही लिख के आना, फॉर्मूले मत लिखना। एंड नेवर यूज कॉमन वर्ड, कॉमन नेम। जो साइंटिफिक नाम है, आयुपेक नेम होता है, उसी को लिखना, कॉमन नेम इसके अंदर मत लिख के आना। इसमें सॉल्ट ए को बेकिंग पाउडर और फिर सॉल्ट बी को वॉशिंग सोडा लिख के आ जाओ, ये चीज मत करना। नेवर यूज कॉमन नेम इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, जब तक कि पूछा नहीं जाता। अगर वो पूछता कि भाई सॉल्ट ए बी सी का कॉमन नेम बताओ क्या है, तब आप इन सब चीजों को करते, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है कॉमन नेम बताने की, जब तक आपसे पूछा ना जाए। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया गया ना हो फॉर्मूला लिखो, तो कोई जरूरत नहीं फॉर्मूला लिखने की, ऑलवेज राइट नेम। इज दैट क्लियर? चलिए अब आता है 92। In one of the industrial processes used for manufacturing of sodium hydroxide, a gas X is formed as a product. The gas X reacts with lime water to give a compound Y, which is used as bleaching agent in chemical industry. Identify X and Y and give the chemical equation of the reaction involved. Now, in one of the industrial HCl2. yes. In manufacturing of sodium hydroxide, a gas X is formed as a product. जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए थे, कौन सा प्रोसेस था हमारा? क्लोरो अल्कली प्रोसेस। So with the help of chloroalkali process, we were manufacturing sodium hydroxide, and in that case, chlorine gas and hydrogen gases are evolved as a product. But chlorine gas reacts with lime water, that is CaOH whole twice, and forms calcium oxychloride, which is used as bleaching agent. So X क्या हो गया आपके पास? क्लोरीन, नॉट Cl2। अभी बताया मैंने, Cl2 नहीं लिखोगे, क्लोरीन लिखोगे। क्लोरीन गैस, Y हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर? और इसकी आप केमिकल रिएक्शन दे सकते हो। 92 समझ में आ गया? कोई डाउट इसके अंदर? सर वाई तो CaOCl2 है ना, ब्लीचिंग पाउडर। हाँ हाँ बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तभी तो बताया मैंने। ब्लीचिंग पाउडर का जो नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। मैं दोबारा बार बार बोल रहा हूँ, जब तक फॉर्मूला पूछा ना जाए क्वेश्चन के अंदर, तब तक फॉर्मूला मत लिख के आना। सिर्फ फॉर्मूला लिख के आओगे, मार्क्स आधे कट सकते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब होता है उसका नाम लिख के आ जाओ। ठीक, चलो भाई 93 आ जाइए। 93 कहता है, what are strong and weak acid in the following list? Acid separate strong acid from the weak acid, hydrochloric acid, citric acid, acetic acid, और इन सबके बारे में बताओ फटाफट। Now, strong and weak acids. Strong acids are those acids which dissociate completely and gives H positive ion, and weak acids are those acids which do not which partially disassociate. which partially disassociate. Yeah, which do not completely disassociate. Now, अब इसमें से बताइए, सेपरेट करना है हमें। Hydrochloric acid is a strong acid, citric acid is a weak acid, acetic acid is a weak acid, nitric acid strong acid, formic acid weak acid, sulfuric acid strong acid.
जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दे ऑल आर वीक एसिड, ऑलवेज रिमेंबर दैट, एंड ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. Question number 94. When zinc metal is treated with a dilute solution of a strong acid, a gas is evolved which is utilized in hydrogenation of oil. ये जो hydrogenation of oil है ये हम लोग पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड के अंदर. Name the gas evolved. Now zinc metal जब भी एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस. So you can Yes. write name the gas evolved. So अगर आप H2 लिख के आ जाओगे सिर्फ तो मार्क्स कट जाएंगे. तो लिखना है आपको हाइड्रोजन गैस. Now write the chemical reaction involved. Zn plus HCl gives you ZnCl2, and you can सर detect H2SO4 भी तो लिख सकते हैं. H2SO4 लिख सकते हो, H2SO4 भी लिख सकते हो. Dilute solution strong acid है, हाँ. You can write Zn plus H2SO4 or Zn plus HCl. If H2SO4 is there, zinc sulfate plus H2 gas. If chlorine is there, then zinc chloride and H2 gas, hydrogen gas. तो आपके पास ये रिएक्शन रहेगी. Now write a test to detect the gas formed. अब इसके अंदर टेस्ट सर लिखना है आपको. Pass the जिस gas through ट्यूब a में soap solution. नहीं 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 नहीं. Pass the gas through soap solution. यस Bubbles सर. are formed, and now put a burning candle near these bubbles. You will get a pop of sound. So this is the test for hydrogen gas. Is that clear? In the following diagram, preparation of hydrogen gas as shown in the figure given below. Now, what would happen if the following changes are made? अब बताओ ये जो changes कर दें अगर तो क्या होगा? पहला क्वेश्चन, फिगर देख लिया आपने, बताइए. In place of zinc granule, same amount of zinc dust is taken in the test tube. Very good question. अगर zinc granules के अलावा इसमें मैं zinc dust ले लेता हूँ तो क्या होगा? The rate of reaction increases और observation क्या होगी? More brisk effervescence और more bubbles are formed. ये लिखना है आपको. Zinc dust क्या हो गई? और छोटे छोटे particles हो गए, उनमें rate of reaction बढ़ जाएगी. तो rate of reaction बढ़ने का मतलब है observation क्या मिलेगी आपको? इसने पूछा है ना, क्वेश्चन में पूछा लिखा है what would happen if following changes are made. So what would happen में you need to give observations. So in this case observation ओके सर. rapid formation of bubbles or more bubbles are formed if we use zinc dust as compared to zinc granules. Is that clear? यस सर. B part देखिए. Instead of dilute sulfuric acid, dilute HCl is taken. Nothing will नो happen. चेंज. No change. The same reaction will take place, but in the end, zinc chloride is obtained in place of zinc sulfate. Now, in place of zinc, copper turnings are taken, then there will be no reaction because copper is less reactive than hydrogen, which do not displace or which copper is not able to displace hydrogen from its acid. So there will be no chemical reaction. D part, sodium hydroxide is taken in place of dilute sulfuric acid and the test tube is heated. Now, in that case, sodium hydroxide and dilute sulfuric acid in place of dilute sulfuric acid, sorry, okay. Now, sodium hydroxide plus metal, it will form sodium zincate and release of hydrogen gas. It will form sodium zincate and hydrogen gas is released only on heating. समझ में आ गई ये वाली बात? कोई डाउट इसके अंदर? फोर्थ पॉइंट बताना. कौन सा? लास्ट वाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला. सोडियम हाइड्रोक्साइड और जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड के प्लेस पे, तो जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड Zn plus NaOH gives you sodium zincate and also hydrogen gas is evolved. बेस प्लस मेटल, एक फिजिक्स उसमें एनसीईआरटी के अंदर आपको रिएक्शन दी हुई है ये वाली, व्हाट हैपेंस व्हेन बेस प्लस मेटल, एक ही रिएक्शन दी हुई है ये. तो अगेन हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड इन दैट केस. सबने क्वेश्चन कर लिए? ओके सर. क्लियर हो गए? कोई डाउट है इसमें किसी को? यस. प्रतीक, सौरभ, नो सर. कौशल. कौशल डाउट बेटा? यश? यस सर. नो सर. चलो बहुत बढ़िया. अब फटाफट 96 देखते हैं. फॉर मेकिंग केक, बेकिंग सोडा इज टेकन if at home your mother uses baking soda instead of baking powder in cake.
हाउ विल इट अफेक्ट द टेस्ट ऑफ द केक एंड व्हाई? अगर बेकिंग सोडा की जगह पे बेकिंग पाउडर का यूज करा गया है, फॉर मेकिंग केक बेकिंग पाउडर इज यूज्ड. If at home your mother takes baking soda instead of baking powder, so how will it affect the taste of the cake and why? जल्दी बताइए, फटाफट क्वेश्चन करिए आप. 96, 97. ये एक काम करो, 96, 97, 98 है ना, और ये 100. इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको एज अ होमवर्क आप लोग करके बताइए जल्दी से. 96 से लेकर 100 तक आपका ये होमवर्क हो गया. 100 की फिगर. पूरी पूरी फिगर देख लीजिए. ओके सर. ठीक है, ये होमवर्क करो. इसके अलावा रुको जरा, मैं कुछ क्वेश्चंस और देना चाहूंगा आप लोगों को. ये काम करता हूँ, मैं वाली शीट ही आपके साथ शेयर कर देता हूँ अभी सारी की सारी. एंड ट्राई टू डू मैक्सिमम. दिस इज असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर ओके सेट सर. 2. मैं अभी शेयर करता हूँ, व्हाट्सएप पे भेजता हूँ आप लोगों को सबको, और इसमें से आप क्वेश्चन करिए फटाफट. ठीक है, और नहीं आती है तो आप मेरे को पिंग कर देना कि सर वो शीट भेज दो. मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है. ठीक है, अच्छे से करो. अब ये बताओ, मंडे को इस चैप्टर का टेस्ट देंगे आप लोग? ठीक है, संडे छुट्टी, यस सर. मंडे को इस चैप्टर का टेस्ट होगा. क्लियर? अच्छे ओके से सर. प्रिपेयर कर लेना फिर. चलो फिर, ओके जी, टेक केयर, बाय बाय. बाय. बाय बाय. और सुनो 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 सुनो, रुको, बाय नहीं, रुको 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 रुको. ये जो मैंने अभी 95 वाले क्वेश्चन दिए ना, ये वाले 96 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन जो आपने अभी कराए, इनका मुझे विद इन हाफ एन आवर सॉल्यूशन चाहिए जल्दी से. विद इन हाफ एन आवर सर अभी स्कूल है. कोई नहीं पता, मुझे नहीं पता. स्कूल को 5 मिनट लेट चले जाना, स्कूल कोई दिक्कत नहीं. जल्दी से इनका सॉल्यूशन मुझे कॉपी में लिख के फोटोस्टेट दो जल्दी, मतलब पीडीएफ करो ग्रुप पे जल्दी से सेंड. ठीक है, ओके. ओके जी, बाय बाय. जल्दी जल्दी फटाफट.